Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Today we deal with the new code template C. Yeah? Today we talk about structures. Okay. And data structure basically where we have the structures on it. Linked list. We create the linked list there. Okay. I will. So linked list में जो होता है आपके पास उसमें स्ट्रक्चर को मास्टर करना पड़ेगा आपको, ठीक है? And dynamic memory allocation, then you can linked list becomes very easy. यानी कि जो आपका linked list होता है basically it is a structure where you have the data part, okay, and you have the link part. Then you create another node. In arrays we had arrays, which is a contiguous memory allocation, right? Contiguous means boundaries touching each other. And if we know the address of this guy, we know the address of this guy, we know address of this guy, we know address of this guy, because अगर इसका address है तो इसके next यही है, इसके next यही है, इसके next यही है. लेकिन इसमें ये problem है कि the problem is that कि भाई साहब अगर आपको for example student का record, because tomorrow we work to develop software and we develop software for a particular objects, like we develop software for college. There are students. I have to record the student. I maybe have the library. There I have to record the book details and also the student details and employee details and a lot more. So we maximum time develop software pertaining to some object but we are not sure how many objects we have. We are not sure that we have 20 books or 100 books or 200 books. So array concept fails there, because array you have to allocate memory in advance. Okay, you will say 100 block of array. Tomorrow you had 200. So this will not work. So we have dynamic memory allocation where we allocate memory as per the requirement. Some student comes, for example, we are doing a tuition and I'm recording the student. And what we do here is one student comes, I will create a node called what? We create a node where I want to put that data. I want to put whatever the data I have. It could be many long. Okay. That means this whole thing will be a structure. It will be what? Pertaining to that object, maybe student, and having all the details of a student. Okay. But we also need to have one more thing. This node is nothing but a structure which has all the data pertaining to that object. For example, मेरे पास एक student है, ठीक है? उसके पास नाम है, age है, roll number है, वगैरह वगैरह. तो ये सारा स्ट्रक्चर बन गया. लेकिन मैं इसकी मेमोरी पहले नहीं बनाऊंगा. मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करूंगा. I will do it in a run time. जो ही ऑब्जेक्ट आएगा, I create this node, यानी कि I create this structure, having all this data part in it. But I also need to have a link part. I also need to have what? Because tomorrow another student comes in. I again create the node of this structure type, but I need to know where is that in the memory. So it will be created somewhere in the memory. I don't know where it will be created, but I need to know this address. So its address is, for example, 1242. Okay, this address has to be linked in this part 1242 here, so that it is linking to this. And right now here it will be null, and all data will be here of that student, and now here will be null. Again some student comes in, I again create the node of the same student. Okay, now whatever the address it generates, 2462 for example, it has to be in this null part. I have to update it so that it points to it. So in this way I don't have any limitation. I can create any node. Only limitation is the memory, how much memory you have. Memories this time we have huge, so there is no limitation whatsoever. And we can delete some. If I want to delete this node, this student for example is cancelled admission, then I have to link this address with this address. This linking part, this is called the linked list, and these all is about the linking, how you link things. You want to delete somebody's, you want to insert in the beginning, you want to insert in the end, and so on. But overall just structure. What is what? So the whole data structure starts with a structure and dynamic memory allocation.
So this class of C will not be only the class of C, but also the first class of a data structure. You understand? I will teach you that way. That will be helpful for the data structure. Do you understand? So we need to learn the structure, how we do it. We need to learn the pointer arithmetic of this, because we all deal with the pointers. This is the pointer. Now, if you look at this pointer holds the address of another structure. So it has to be of same data type as that of a structure itself. It has to be pointer, but what pointer? Will it be int pointer, character pointer, floating pointer? No. Because it has to store the address of the same node, जिसका ये खुद बना है. ठीक है ना? अच्छा फिलहाल और क्यों नहीं माँ? व्हाट्सएप में कोई नहीं आया. वो भी सोए होंगे मेरे ख्याल से. ऑनलाइन बोल रहे हैं लेकिन बाद में कोई आया नहीं. Anyways, आपको समझ आया? ठीक है ना? Now we will talk about the structure a little bit and then clear out. Okay. Yeah. So let us create a structure first. If you want to create a structure, I'll use the keyword struct. Then the name of the structure, maybe it's a student. Okay. Then I put up a braces and terminal. You have to understand one thing, that we maximum times use type def in linked list. If you see the books of data structure, they use type def. We'll see the later. Type def we have read about. That we create an alias. Okay, it's nothing other than that. So that कि अगर मुझे लंबा नाम कहीं पे जरूरत है लगने की जरूरत नहीं, मैं simple लगाऊं. For example, I will type def this to S. So जहां मुझे struct student लगाना था, वहां पे S लगाऊंगा मैं. ठीक है ना? We'll see that later on. Let's first concentrate on structures. Okay. So this is struct student, and it will have all the data about the student, like name, roll number, or this will be character arrays, and there could be some integers, floating point like fee, float fee. I will show a simple thing like I have two things, int A and float B. Float, we could have many data. जो C++ में था classes, जो आपने पढ़ा था, C++ में पढ़ा ना class. Class और इसमें ये फर्क है कि class में data भी होता है और methods भी. Structure में खाली data हो. There are no methods. That is why, yes, that's why structure is like classes are structure plus methods. Okay. Otherwise, we have in C the structure, but it is only the data part. No methods are included. अगर हम इसमें methods भी include करेंगे तो एक class बनेगा. ठीक है ना? Okay. Now I got a struct student and int A, int float B. Now it is like your own data type. Like you have int. Okay. For example, I say here int. Will it create any variable by saying int? I have to create of type int some variable. Same way, this structure is a data type. By writing this data type, nothing is created. ठीक है? इसके अंदर मेरे पास 50 चीजें होंगी. उसमें से एक भी चीज का वजूद अभी तक, क्योंकि it is only telling if you create tomorrow a variable of type student, उसमें ये सारी चीजें होने वाली. ठीक है? लेकिन अभी कुछ है नहीं जब तक बनाओगे नहीं. जिस तरीके से हमारा int है, खाली int बोलने से मुझे पता है इसको 4 बाइट्स या depending on the word size of processor उतनी बाइट्स मिलने वाली. लेकिन int का जो हमने बनाया है int उसके होने से नहीं बनेगा ना, जब तक वेरिएबल नहीं बनाओगे. इसी तरीके से हमें स्ट्रक्चर को बनाने के बाद उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा. ठीक है? तो I could say struct student S1 for example. Now S1 is of type student. So S1 can have everything what the student has. Okay. Now, for example, I will ask user on this as a AS must cache with the BS must cache. So I could say printf \n enter value into A. Again, I will put a value, some value in A, and I will scan that f, scanf %d double quote close comma ampersand of. अब मसला है कि वो किस में डालना है, A में. A खुद का नहीं है. A
बिलोंग करता है स्टूडेंट स्ट्रक्चर और उसके वेरिएबल का नाम क्या है S1, S1, ठीक है ना। सो आई हैव टू से S1 डॉट ए, आई हैव टू से व्हाट, बस में आ रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली लाइक क्लास डॉट ऑपरेटर इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि कल हमारे पास और भी स्ट्रक्चर्स हैं। से फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्टूडेंट 2, से आई हैव स्टूडेंट 2, उसमें भी ए है बी है, से फॉर एग्जांपल उसमें भी ए बी और भी बहुत चीजें उसमें ए बी भी है। अगर मैं डायरेक्ट ए करूंगा तो किसका ए होगा, सो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। सो वी हैव टू टेल कि भाई किसका ए। असल में होता क्या है कि जब ये स्ट्रक्चर का मेमोरी दिया गया है, when this structure's memory is given somewhere, जब यूं ही मैंने ये कहा ये लाइन, ठीक है, इसका वजूद आ गया, जो भी इसमें होगा, अभी दो ही चीजें हैं, वो मेमोरी दी जाएगी कहीं पर, उसमें ए का वैल्यू और बी का वैल्यू यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ए की मेमोरी खड़ी हो गई, बी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गया, खड़ा हो गया, ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चर का कुछ एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 2 6, ठीक है। पहले मुझे इस 1 2 4 2 6 पे जाना है, उसके बाद मुझे ऑफसेट निकालना है, ये ए किधर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जुनैद सर है इस रूम में, रूम नंबर 5, रूम नंबर 5 में जुनैद सर है, लेकिन पहले आपको हाउस नंबर 44 पहुंचना है। आप बोल गए रूम नंबर 5 खाली, तो रूम नंबर 5 किसका है, वो उस मकान का भी उस मकान का, तो पहले आपको हाउस नंबर 44 रूम नंबर 5 बोलना पड़ेगा। अब बीसीए क्लास में हो, बीसीए क्या हो, थर्ड, लेकिन बीसीए थर्ड वो अमर सिंह का भी हो सकता है, वो विमेंस कॉलेज का भी हो सकता है, पहले मेरे को इस्लामिक कॉलेज पहुंचना है, ठीक है ना। इसी तरीके से पहले आपको इस स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर जहां पे मेमोरी में है उस एड्रेस पे पहुंचना, फिर डॉट ए करके वो इसका ऑफसेट निकाले, यानी कि जैसे रूल नंबर 5 है, ओके, पहले वो से फॉर एग्जांपल दिस एड्रेस ऑफ 44 था, फिर उसको ऐड करेगा ये 5, तो रूल नंबर 5 निकलेगा। तो इसी तरीके से 1 2 4 6 जो भी एड्रेस का है प्लस इसका ऑफसेट जितना भी है 1 2 3 4 पर है, प्लस इसको 4 करेगा, तो यानी कि इसका एड्रेस होगा 1 2 4 3 0, सो वो फिर निकलेगा ए का एड्रेस। तो दैट इज यू हैव टू से s1 डॉट ए एंड एम्परसैंड मींस ड्रॉप एट दैट एड्रेस, ड्रॉप एट दैट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर मुझे वो करना है दूसरा वाला बंदा फ्लोट में डालना है, मैं ऐसे कॉपी करूंगा, कंट्रोल बी, एंटर द वैल्यू इनटू बी, वो फ्लोटिंग पॉइंट है तो इसमें परसेंट क्या हो जाएगा f, और बाकी s1 ही होगा, s1 डॉट b, and then I can print the values by sub printf \n, a is equal to percentage d and b is equal to percentage f, दूंगा ना वैल्यूज इनके, और यहाँ पे \n करेंगे, कामा a कामा b, ये प्रिंट करेंगे। if I give it a go, कुछ मसला है कहीं पे, क्या किया हमने, a was not declared in this scope, किस स्कोप में, S1 नहीं किया हमने, अच्छा यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट ए बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए बोल रहा हूँ, मुझे बोलना है S1 डॉट ए, इसी तरीके से S1 डॉट बी, क्योंकि डायरेक्ट नहीं चलेगा ना, बताना पड़ेगा पहले कौन सा। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फॉर एग्जांपल 3, उसमें 4 डाला और ये 3 और 4 फ्लोटिंग पॉइंट था, इससे 0 इसने बचे, ठीक है ना, समझ में आई बात। सो सिंपल स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर में हम एक और चीज भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूं, मैं S1 को इसकी गोद में ही लगा सकता हूँ वेरिएबल, हाँ इसकी गोद में ही लगाएंगे तो वो भी चलेगा, तो वहीं पे लगा सकते हैं कामा करके, और भी अगर 2 चिन्ह बनाने हैं आपको वो भी कर सकते हैं, ठीक है, वहीं पे लगा देंगे, फिर मुझे यहाँ पे खड़ा करने की जरूरत, अब जब मैंने इधर लगाया तो उस वक्त स्टूडेंट नेम भी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो पता ही है ना S1 इसी का है, इस स्ट्रक्चर का S1 है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करता मुझे नहीं पता था कि मेरे पास 10 स्ट्रक्चर होते, तो ये S1 किसका है, उस वक्त नाम का होना जरूरी है, लेकिन चूंकि मैंने उसी के साथ रखा, मुझे अब पता है S1 पड़ गया इसका, ये तो इसी का है, ठीक है। सो आई डोंट नीड द स्टूडेंट देयर, इट विल स्टिल वर्क।
ठीक है ना, बस में आ रही है। ओके, अभी कंट्रोल Z करूंगा मैं, अभी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब मसला ये है कि चूंकि मुझे जो लिंक्ड लिस्ट आपको करना है उसमें पॉइंटर्स का किस्सा साथ एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो पहले पॉइंटर्स का सीखेंगे, स्ट्रक्चर को पॉइंटर से कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। शायद हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था बिगिनिंग में, डेटा टाइप्स में पढ़ा था। मैं एक पॉइंटर वैल्यू खड़ा करता हूं ptr, लेकिन भाई साहब ये ptr किस टाइप का है, ऑफ टाइप स्टूडेंट। अगर मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे इंट एस्ट्रिक p, अब p बन गया हमारा ऑफ टाइप इंट, जो p है इसका डेटा टाइप बन गया ऑफ टाइप इंट, लेकिन ptr का ऑफ टाइप स्टूडेंट है, स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का टाइप, ठीक है ना। अच्छा, अब जो इंट एस्ट्रिक p में कह रहा हूं, यहाँ पे हम स्ट्रक्ट भी हटा सकते हैं, स्ट्रक्ट जरूरी लिखना नहीं है, वो भी ऑप्शनल है, फिर रिमूव दिस स्टूडेंट काफी है बोलना, ठीक है। एनीवेज लीव दैट। ये जो p है इट कैन होल्ड द एड्रेस, बिकॉज़ पॉइंटर वेरिएबल्स कैन होल्ड द, but it can hold the address of some integer variable, and this guy ptr will hold the address of some structure variable, that too of type student। अगर कोई वेरिएबल है जैसे s1 है जो इसका टाइप है, जैसे int ptr है और मैं कहूंगा int a, now p can hold the address of a, how I could say p is equal to ampersand of a, drop the address of a into p, because p का मकसद ही है कि किसी चीज का एड्रेस, लेकिन वो इंटीजर टाइप होना चाहिए। अब इंटीजर टाइप मेरे पास a है, ये इसका एड्रेस ले सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से ptr है, लेकिन इसका टाइप क्या है, ऑफ टाइप स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्ट्रक्ट स्टूडेंट कोई कोई और स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल बस ये वाला स्ट्रक्चर है, इसका नाम ये है। अगर इसका कोई वेरिएबल है, जैसे मैंने s1 बनाया या मैं s2 बनाऊंगा या s3 बनाऊंगा या कुछ भी वेरिएबल्स बनाऊंगा, उसका एड्रेस ये ptr होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो आई कैन, जैसे मैंने यहाँ पे डाला एड्रेस, ठीक है, इसी तरीके से मैं डाल सकता हूँ ptr में एड्रेस। आई कैन से ptr इज इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ, क्या क्या बोल सकता हूँ, s, क्योंकि ptr is a of type struct student, it's a pointer variable, it has to have an address in it, and which address it can have it, the address of the type structure, that to student, सिर्फ स्टूडेंट और दूसरा स्ट्रक्चर नहीं, जिसका इसका डेटा टाइप है, जो जिस डेटा टाइप का ये है उसी का कोई वेरिएबल ले सकता है, तो उसका एड्रेस इसके अंदर ptr is equal to ampersand of s1, s1 is itself of type struct student, तो उस ptr का भी वही डेटा टाइप है, इसलिए ptr इस s1 का एड्रेस ले सकता है। अब डायरेक्ट s1 से तो हम ऐसे करेंगे, अब ptr तो पॉइंटर है, अब पॉइंटर से कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हमारे इंटीजर पॉइंटर फॉर एग्जांपल होगा मेरे पास, है ना, जैसे ptr था उसमें मैंने एम्परसेंड ऑफ a डाल दिया, सो a फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, उसमें 24 है, ठीक है, और उस a का खुद का एड्रेस है 1242 फॉर एग्जांपल, यानी कि ptr में है क्या 1242, द एड्रेस ऑफ a, ampersand of a, that's address of a, what is the address of a, this is a 1242, so that means ptr is having this address and it's pointing to this. Now if I want to access 24 using a, I will say printf a, simple, percentage d a karega print. But if I want to print the ptr using the ptr, I have to say asterisk ptr, that is value at address. ptr is holding this address 1242, what is the value at that, that is 24. If I print ptr directly, it will print the address of it, because ptr is holding the address of it. If I print ptr, it will print what, it will print the a address, it will print the address of a, not the value. But if I say asterisk ptr, it will print what. अब यहाँ पे दो चीजें हैं, क्योंकि अगर मैं s1 से कर रहा हूँ ये s1 डॉट a करना पड़ेगा, क्योंकि a डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, तो डॉट तो लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ptr से अब कर रहा हूँ, if I am using the ptr, that means I have to first use the asterisk. I have to use what? If I don't use s1, I have to use the asterisk ptr, ठीक है। पहले इसको पेरेंथेसिस में asterisk करना पड़ेगा, पहले वैल्यू एट दैट ptr करना पड़ेगा ना, जो वैल्यू है एट ptr,
फिर निकल गया ना अब कि पीटीआर के अंदर क्या है, वहां डॉट ए करना पड़ेगा, तो ऐसे करना पड़ेगा एम्परसेंड, क्योंकि मैं स्कैन कर रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ पे एम्परसेंड वैसे ही, लेकिन S1 के बदले क्या, कैसे S1 के बदले लिखूंगा मैं एस्ट्रिक पीटीआर डॉट बी। देखिए जो यहाँ पे था ptr is equal to ampersand of a. Now if I say a, that is अगर इसका a का वैल्यू है 4, if I print a, what will you print it? 4. a की जगह मैं लिख सकता हूँ ना asterisk ptr, that is also print the 4. So a and asterisk ptr same. Same way here, I was using S1. I was using what? If you look at, I using S1. S1 is same as asterisk ptr. So if I write here asterisk ptr, I use S1. It's same. I use it asterisk ptr or S1. Ampersand of S1 or ampersand of asterisk ptr. Okay. Same way here. What? How I should access this a? Asterisk ptr dot and this one. Okay, na? Clear? Good. So if I want to access it now using the pointer, I will say asterisk ptr. First asterisk ही करना पड़ेगा, फिर डॉट है, क्योंकि डॉट को प्रेसिडेंस ज्यादा है asterisk से, सो ये पहले डॉट ही निकालेगा, फिर asterisk, फायदा नहीं आएगा, क्योंकि ptr डॉट ए करेगा, फिर उसका asterisk करेगा, वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। पहले asterisk ptr करो ताकि S1 के पास पहुंचे, because S1 is same as asterisk ptr. उसके बाद डॉट करो। ये पेरेंथेसिस लगाने से मैं क्या कर क्या रहा हूँ, I am giving precedence to asterisk. To do first the asterisk. Indirection करो, यानी कि पहले ptr की indirection करो, वैल्यू एट दैट ptr निकालो, यानी कि that is equal to S1. इस तरह asterisk p मैंने अभी कहा, that is equal to a. उसके बाद आप निकालो आप कहाँ जाना है, so it will be same, it won't have any issues. So we had 2 and 4, it's working same. ठीक है। लास्ट पार्ट जो हम इसमें करने वाले हैं वो ये है कि ये लंबा चौड़ा हो रहा है ना asterisk ptr डॉट, asterisk ptr डॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ, इट इज वन एंड सेम थिंग, ठीक है। asterisk ptr डॉट तो समझ आया ना क्यों करेंगे, उसको शॉर्टकट में ऐसे एरो लिख सकते, ptr एरो a। तो जहां पर भी मैं ptr एरो a कहूंगा, मैं कहूंगा asterisk ptr डॉट a, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ptr एरो a। सो एरो मींस asterisk b और डॉट b both together in a one symbol. तो ये खुद ही इंडायरेक्शन करेगा, पेरेंट्स से लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं दिस पॉइंटर नहीं, इसकी जगह लगेगा एस्ट्रिक पीटीआर और डॉट भी कर रहा है, दोनों चीजें कर रहा है, ठीक है, ये दोनों चीजें कर रहा है, नहीं दिस पॉइंटर अलग चीज है। एस्ट्रिक मींस इंडायरेक्शन, व्हाट इज एट द वैल्यू एट दैट एड्रेस, एंड फिर डॉट, यानी कि उसके बाद उसको आगे जाना है ना, ऐड करना है ए को, ताकि ए का एड्रेस ऐड हो उसके साथ, बेस एड्रेस के साथ, यानी कि ये अगर स्ट्रक्चर है, इसका एड्रेस है 1246 और ये वाला है 12, अब ये हम यहाँ से 1 2 3 4 6 पे है, देखिए कुल मिला के हैं ये 1 2 4 12 पे, ये है ना। तो मैं कह रहा हूँ ए बताएगा 6, ए क्या बताएगा, और ये वाला एड्रेस कौन बताएगा, पीटीआर। तो अगर जब एस्ट्रिक पीटीआर करूंगा मैं, वैल्यू एट द एड्रेस, मैं इधर अंदर पहुंचूंगा, उसको मैं डॉट फिर ए निकालूंगा, तो उसके बाद 6 निकलेगा, उसका आंसर क्या होगा, ए का, ठीक है ना। और ये दोनों काम, यानी कि इंडायरेक्शन करना, फिर डॉट लगा के इधर जाना, ये एरो करेगा, ठीक है। तो हम अक्सर डेटा स्ट्रक्चर्स में आप सिर्फ एरोज ही देखोगे, एस्ट्रिक पीटीआर डॉट नहीं देखोगे, पीटीआर एरो देखोगे सीधे, पीटीआर एरो ए। यहाँ पर भी कह सकते हैं पीटीआर, पेरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, डॉट एस्ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में हो जाएगा काम, ठीक है ना। ये शॉर्टकट है बस, और कुछ नहीं है, इसका शॉर्टकट है, ठीक है। पहले एस्ट्रिक को हमें पेरेंट्स लगाना, क्योंकि वरना डॉट की प्रेसिडेंस ज्यादा है, पहले डॉट ही हो जाएगा, उसके बाद एस्ट्रिक हो जाएगा तो गलत निकलेगा एड्रेस, इसलिए एस्ट्रिक हमें लगाना पड़ेगा ये। सो इफ आई गिव इट अ गो, इट विल स्टिल वर्क फाइन, ठीक है ना, इट्स स्टिल वर्क फाइन, ठीक है। ओके, ये आपके डेटा स्ट्रक्चर का भी फर्स्ट क्लास हो गया, सी का भी, बिकॉज आई वांट टू कीप इट
दैट वे, ताकि आपको डेटा स्ट्रक्चर में मदद मिले। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर में पहला क्लास हो गया। अब इसमें अब हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करनी है, यानी कि अब हम मेमोरी क्रिएट नहीं करेंगे पहले, वी वुड लाइक टू क्रिएट इट एट द रन टाइम यूजिंग malloc or calloc. Okay, then also the realloc. There are many more. We will do that inshallah tomorrow. Okay, समझ में आ गई? Any questions?